We can set GST rates on individual item, group, ledger and company. We know how to do all these three, but this how to set the rate of GST directly on company. Or Tally Essential Level 3 question, and this here we have to set the rate on company. So from F11, after doing yes to GST, under this set slash alter GST rate, if we will click yes. So now from here we can put the GST rate on directly company. Here we are setting the GST rate on company. तो फंक्शन, हाँ, और फंक्शन की क्या होगी? डेट आपकी है 13 दिसंबर क्यों दिखा रहा है? डेट डालो। कैश में क्या पेमेंट है बेटा, खरीद रहे हो आप अपने, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। आपको बोला है इसमें जीएसटी लगाने के लिए, हाँ तो आपने फर्नीचर में जीएसटी रखा होगा, स्केप करो। Applicable for interest rate. इसको कंट्रोल एंटर करो। Threshold 50. E-invoicing applicable yes. जीएसटी एप्लीकेबल करके रखे हो, पूछेगा वो आपसे। One general बोला नहीं है ना चालू में जीएसटी bill from place. मुझे नहीं पता तू क्या करेगी, तू तो क्वेश्चन ही अलग करके कंपनी क्या है तेरा जीएसटी क्लासिफिकेशन थोड़ी ना करी थी तू, कंपनी तू पक्का यही कंपनी में काम करी थी कर, मेरे को तो डाउट हो रहा है। तूने कुछ और नाम रखा था, भानु भूनू करके कुछ रखी थी जीएसटी। हाँ तो ये तो कंपनी चला गया ना मेरी माँ, मैं देखो मारूंगी झापड़ में, बता रही सुबह नहा धो के आया था, बिना नहाए आती है, बिना करंट पड़ी हो उसी में। We have done क्या enabled and we have enabled and filled the details of GST. Now see from here more detail. More detail. So control I. More detail under GST details, under GST. No, under general details. Under general details. चलो पहले वापस से करो। AST. डेट भी गड़बड़ हो रहा है बार 13 दिसंबर। G. समझा? 3345Q. तुम ही देखोगे ना, मैं थोड़ी ना देखूंगी बेटा। पहली एंट्री से चालू करना, अब फिर कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में नोट करके रखो। F6 पहले क्या करेंगे, कैश की एंट्री पहले कर लो, फिर बैंक की और करिए। नेक्स्ट वीक में एक वीक नहीं रहूंगी, तू आएगी कि नहीं आएगी बता। Capital introduced through bank. We have filled all the details of the bank. किससे खरीद रहे हो? Purchase applicable goods. यहाँ पे कौन सा वाला Sales applicable goods. IGST, duties and tax, GST integrated. We have to do only this. We do not have to set this. GST rate we set on the items, not on the ledger. और थोड़ा ध्यान से करना, चीजों के नाम के एक जैसे ही हों। Stock group. ठीक है, ऑर्डर नंबर देंगे इसमें, ऑर्डर नंबर क्या है पहला, इंडिया के
Currently, we do not have to put the GST rate on stock group. Therefore, we will select alter slash GST retail no. Now we will create a stock item. Stock item. Stock item. Name, television, NOS, applicable. Set alter GST retail. We have already set the GST rate on company. Therefore, that rate will automatically will be applicable here. मैम ये वाला जो है इसमें जो सेट स्लैश ऑल्टर GST डिटेल है. Now we will make a stock item. Stock item Samsung 32-inch LED TV, television, NOS, goods. Here we have set no because in this question in starting we have set the GST rate on the company. We have set the GST rate on the company. So when we set the GST rate on company, then the rate we write in here. We write the rate in here. कहाँ पे लिखेंगे 2000 आप वो भी देखो आप कहाँ पे 2000 की लिखना है पक्का. Another stock item. To view the वही तो है मैं वो वाला बोल क्या रही हूँ आप stock item etc. we will go on chart of account. We will go on stock group. This is a stock group. Stock item. These are stock item. उनको वैसे जवाब Like this way we can see that. नहीं नहीं Afterwards we have to create a stock item. And here we have to set this alter GST detail. Yes. So we have done that, and under which we have set 28% IGST. And here also we have to write 28 because I think when we set on company we have to do here always. Same for another stock item. Earlier it was asked to create a stock group. ओपन करके ही रख उसको ऑफ Stock group you have to create from here, not from here. Here. कौन सा यूज Yes. Description. We will fill this detail. क्या लिखा उसमें सबसे पहला शब्द क्या है उसी में ही आएगा डिलीवरी नोट में ही आएगा Now we have to create ledger for the services like maintenance, service, etc. So we will go on ledger, create maintenance service, indirect income, GST applicable, yes. GST applicable, set alter GST retail, yes. Description repair. आपने पहले क्या किया था अब क्या करना है तो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको
पलटने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में It's ठीक करो। service. क्या होगा? अब तो नहीं समझ में आ रहा है। Now for print media services, it is an expense. मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाया भी है या नहीं। परचेज रिटर्न तो क्या बोलते हैं महेश्वरी, आप ना सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो। तो फिर याद क्यों नहीं है कुछ? परचेज रिटर्न को डेबिट नोट बोलते हैं, आपको नहीं पता है ये? तो फिर क्यों नहीं बताते हो? कैसे पढ़ रहे हो आप? आपके पास घर पे सिस्टम है तब इतना कंफ्यूजन है। So transaction taxable. So when we create ledger for services, we have to create it from ledger, and ledger like it is a service expense type service. So here that service, here that it is indirect expense, and then here GST applicable, then here we will set the rate, and here it is service, and in service it is a type of income. So here that service, here that indirect income, here applicable, here that GST percentage, and here what we will write, here we will write that it is a service, then control it. There is a thing that like if anything, any item is taxable of 18%, and if companies sell that taxable stock item to an SEZ where that item is exempted, therefore the stock item which is taxable at 18% need to be overwritten at transaction level. परचेज ऑर्डर के स्टेप्स क्यों नहीं आते? क्या That was just for knowledge. Now we will create a stock item. फूड कैफे से अभी तक आपने काम किया है क्या? नहीं किया। आपको क्या मिल रहा है उससे? We have already set GST on company level, therefore we will put the rate here. Goods. रिसीव ऑर्डर हो रहा है मतलब ये आपका अब यहाँ पे Rate क्या of हो रहा duty है? 12% here. ठीक है। जब सेल्स ऑर्डर होगा उसके बाद ही तो डिलीवरी होगा ना। आपने सेल्स ऑर्डर लिखा ही नहीं था, पहले डिलीवरी नोट डाल इनवर्ट्स का रिटर्न डेबिट नोट होगा। The stock item created under the stock group washing machine and LED light do not require defining GST detail because GST detail are configured as stock group washing machine and LED light. Alter washing machine. Following goods were returned to auction stores. Yes, in washing machine we have done. तो आपने क्या किया था? Yes, in LED light we have done. In stock group we have तो यहाँ पे put the rates. So while creating the stock item of this and this, one come under the washing machine, one can come under LED light, and both groups we have set the rates. So in both stock item we have written the rate on, we have written the rates on like here, सब याद like करेंगे। आज का मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त। ये सारी चीज़ मतलब repeat हो रहा है ना, इसीलिए तो repeat हो रहा है ना। समझ में आया? we have written the rate अगर एक in चीज़ here, नहीं here, बताओगे कि here, फंक्शन की कौन सा here. Not in लगेगा, yes. कैसे? We do not do yes, and then we do his rate of duty here. You know, कुछ भी नहीं Now किया। we will create a stock group. गलत चीज़। Stock group. यहाँ पे अरे। आपने सबसे पहले क्या करना है? गुड्स प्री-ऑर्डर्स कहाँ क्या? हाँ, ये प्री-ऑर्डर्स। यहाँ से प्लेस्ड ऑर्डर अगर बोलेगा, प्लेस्ड ऑर्डर मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परचेज ऑर्डर। और कहीं पर अगर लिखा रहे रिसीव्ड ऑर्डर मतलब ये आपका सेल्स ऑर्डर। समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगा के काम करो। कल आके इसको पूरा अच्छे से घर से पढ़ के आना। F10 फुट
वो कर F10 कर। मैं आपको हेडिंग बना के दे रही हूँ वैसे यहाँ पे सब नोट Then we will create जो आपको stock पता है, item जो आपने under किया that है, जो stock नहीं group. किया है, उसको तो मैं बोल भी नहीं रही। जो आपने किया है यहाँ पे फंक्शन, ओके, और यहाँ पे उसका यूज़ आपको जो भी पलट के देख के In stock group of mobile phone we have set the GST, therefore here no, फंक्शन की but here we will write the rate. चौपड़ खाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामने दिख रहा है Alt F6 क्यों क्रेडिट नोट का क्या यूज़ है। चलिए देख अपनी यहाँ पे लिखा है क्रेडिट Mobile phone जब से not applicable no. We have set the GST rate on the group that is mobile phone, therefore here we will set no, but we will write the rate here. या फिर सीधा मैनुअल रहने दो तो उसमें बस डाल देना अपने आप। Now we have to record the transaction, and here in transaction see this invoice number, therefore we will go on alter. After going on alter we will go on voucher type, then we will select PUR purchase, we will go on purchase, then automatic manual override. Yes, किया हुआ है, अच्छा Yes. नहीं लगता भुवनेश्वरी, पता है ऐसे Control A, आप कभी control A. जवाब नहीं देते, फिर मेरे को लगता है मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। sales automatic manual override. मैं पूछूंगी ना Yes. इसका मतलब वैसे। Yes, क्रेडिट Control A, कार्ड control A. सेल्स रिटर्न के परचेज रिटर्न के लिए होता है। Now यही we तो होता है। can- अब सेल्स रिटर्न क्या होता है, now we इसका can करने के लिए write the क्या होता है बताओ? now we can सेल्स रिटर्न का होता write the invoice number. है जो आपने सामान बेचा, खराब हुआ, आप सामान वापस कर दो। परचेज रिटर्न डेबिट, सेल्स Purchase. रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। तो यार कुछ नहीं करी बेटा, घर पे कितना बन गया ये क्वेश्चन। Set provide GST label detail. Currently we have to do no. Currently no. And for checking GST tax analysis we do control I or control I. GST tax analysis, and in new Tally Prime we have to do control O, and in older Tally Prime we have to do control I for GST tax analysis. From here F11 or F5, Alt F, from here Alt F11 we can expand this, and then control A, page up. We have seen this and also this. This is GST tax analysis and GST tax analysis both. Next entry purchase. We have done here also. We have to do no reference controller. Sales purchase payment.
sales purchase payment, display more reports, GST reports, GSTR 3B। जो रिपोर्ट है इसको मतलब थोड़ा समझाओ ना, ये क्या आप वो बता रहे हैं। जैसे कि जो 78,900 है। हाँ, ये आपका ITC अवेलेबल दिखा रहा है। अच्छा मतलब हाँ हाँ, मतलब अभी हम लोग कलेक्ट किए ही नहीं है। मतलब इतना आप क्लेम कर सकते हो, इतना ITC आपका दिख रहा है। मतलब GST 1 में शायद कुछ नहीं होगा फिर। हाँ, सेल्स नहीं हुआ, यही कलेक्शन का दिखा जो रहा है। आपने सिर्फ अभी परचेस किया है तो परचेस का आपका ITC दिख रहा है। जब आप सेल्स करोगे तो फिर वो सेट होगा, सेट ऑफ होगा वो ना। सेल्स माइनस परचेस फिर दिखाता हाँ, है। फिर वो जो रिमेनिंग अमाउंट है फिर वो नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस से दिखेगा। अभी तो लेने का टाइप से हो रहा है। कार्बन दिखाई देगा। नेक्स्ट एंट्री सेल्स वाउचर एंट्री। In this we have to do yes to even. Yes, now we will fill all the details. Transporter name, new, MITHUN, transporter ID, vehicle number KA 01 432 KA regular नहीं, आप सिर्फ क्या बना रहे हो? उसका कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ स्टॉक आइटम बनाओ, लेजर बनाओ। मैम यहाँ पे अगर हम लोग सेंड दबाते हैं मतलब सेल हो जाता सेंड है। दबाएंगे तो आपका ई-वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि रिपोर्ट में जाके अपन जनरेट करेंगे। उस दिन भी अपन ने ई-वे बिल जनरेट कर दिया था, तो ई-वे बिल नंबर आ गया था। यहाँ पे अभी बोला है क्या जनरेट करने आपको? नहीं बोला है। ये आपको ना बल्क में जनरेट करना होगा। अभी सिर्फ इसको सेव कर दो, कुछ नहीं। मतलब वही ना, अगर सेंड दबाते तो सेल हो जाता है। क्लिक ई टू क्रिएट अ जेसन फाइल। आपका जेसन फाइल बन जाएगा। द फोल्डर इन विच द जेसन फाइल इज क्रिएटेड नाउ अपीयर्स एज शो। जेसन फाइल बन जाए। वंस आफ्टर जेसन फाइल इज क्रिएटेड वी कैन अपलोड द जेसन फाइल इन द ई-वे बिल पोर्टल टू जनरेट द ई-वे बिल नंबर ऑफ द इनवॉइस। अब यहाँ पे बोला है आपको जनरेट करना है तो कर दो। अब वो जेसन फाइल आ गई होगी, देखो आपकी ई-वे बिल को। अच्छा, सेव हो भी गई। हाँ, सेव हो भी गई। आज के डेट के हिसाब से देखो आज की डेट के बाद अभी कितना बजा? 11:38 सेकेंड। 10 सितंबर ये 10 को करो और ई-वे बिल का सेकेंड वाला है। अच्छा ये ठीक है, 9 तो 10 जेसन फाइल अब जनरेट हो गई है। ठीक है, अब अगर आपको ई-वे बिल जनरेट करना है तो यही फाइल आपको ई-वे बिल के पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ई-वे बिल का आप अपन लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और यही फाइल को अपलोड करेंगे तो आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अरे अपडेट थोड़ी करना है। फिर वो जब ई-वे बिल नंबर आ जाएगा उसके बाद आपको इसको अपलोड भी करना पड़ेगा, अपडेट करने बोलेगा जो भी। Now we will do the sales entry.
it is not a credit sale received through bank. So here we have written Kotak. But in invoice we have to write the name we are selling to whom in cash. It is a type of cash sale but payment in precedent bank. Therefore buyer bill to. Then here we will write JAGATH. GST registration type consumer. It is told consumer. Place of supply Karnataka. Place of supply Karnataka. Since the recorded transaction are outward supply, the tax implication of this transaction can be viewed in GSTR 1 and GSTR 3B. GSTR 1. Let's go on GSTR 1. We can also go from Alt G or Control G. Shift to or go to, but we are going step by step. Display more reports, GST reports, GSTR 1. Say this, then say this, same. GSTR 1. GSTR 1 is for sales. GSTR 2 is purchase. And GSTR 3 is payment. 1 minus 3. GSTR 1 minus GSTR 1 minus GSTR 2. Then there will be the payment amount GSTR 3. ये हमेशा ज़ीरो रहना चाहिए. अनसर्टेन ट्रांजैक्शन. अगर अनसर्टेन ट्रांजैक्शन कुछ भी रहेगा मतलब हम लोग सही नहीं किए, कुछ एंट्री में गलत होगा. या तो हम पिन कोड नहीं डालेंगे, या तो हम डेट, एड्रेस, GST नंबर, वो भी GST नंबर करेक्ट वाला अगर हम लोग खुद से बना के डालेंगे, जैसे कि 22 फिर 5 बार ABCD 5 बार नंबर फिर 1Z1 ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा. इसलिए जब भी हमें सही GST नंबर चाहिए होगा फॉर प्रैक्टिस, वी विल गो ऑन गूगल, वी विल search GST number of dealer in Karnataka or any place, or we can also search correct GST number starting with 22 like 07 anything. GSTR 1, GSTR 1, GSTR 3, GSTR 3, GSTR 3B. Before that it was GSTR 1, it is GSTR 3B. So this is नहीं ट्रांसपोर्टर ID नहीं दिया. टैक्सेबल अमाउंट, इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा. फिर ये टैक्स अमाउंट है, ये हम सेल किए हैं तो जो सेल पे जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है वो यहाँ पे आया, और हम लोग पहले ही परचेज़ कर चुके हैं तो उस पर हमने जो टैक्स अभी तक दे चुका है, तो ये अपन को गवर्नमेंट को देना है. इतना हम पहले से ये दे चुके हैं, मतलब अभी देना नहीं है. कुल मिला के ये हुआ.
सेल्स से जितना टैक्स कलेक्ट किया, परचेज से जितना टैक्स पहले ही दे चुके हैं, दोनों का डिफरेंस पेमेंट में जाता है. और टैक्स इनवॉइस वी हैव टू शो रेट ऑफ ड्यूटी. सो फ्रॉम F12 we have clicked yes on additional description. So rate of करंट फिर कॉन्फ़िगर. अब इसमें क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स दिख रहा है ना आपको? हाँ 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 हाँ. अब स्टैट्यूटरी डिटेल्स में ये देखो, शो ई वे बिल नंबर को, इसी को आपको यस किया होगा. अच्छा, मैं पहले इसमें पहले से यस था. यही चीज़ बस आपने यस करनी है, तब वो ई वे बिल जो है वो आपके टैक्स इनवॉइस में दिखाई देगा. In this tax invoice we have to do two things: rate of duty and e-way bill. So this from here and e-way bill from while printing, and this from F12 additional detail. Control A. So we have done this. We have also done this. डिटेल्स एक आपका 16 ये अक्टूबर का कोटक बैंक का. वॉशिंग मशीन बेचा है. हाँ, वॉशिंग मशीन. फिर इसका वो अच्छा, ये आपका तुरंत आपको पैसा मिल रहा है वो वाला है. हाँ, हाँ. लेकिन यहाँ पे ये यहाँ देखो, पे print नाम to- change हाँ, किया. नाम हाँ. चेंज करने वाला काम कर लेना. हाँ, वो नाम चेंज कर लिया. तो इसको रिपोर्ट देखने बोला. B2B, B2C, 3B ये आपने देख लिया. अब इंटरेस्टेड इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब आप सर्विसेज परचेस करो, सर्विसेज पर टैक्सेस इसमें वो कौन दूसरा वाउचर करते हैं. अकाउंटिंग. हाँ, अकाउंटिंग वाउचर.